کیا یہ صرف کیسر بٹ کی صلح ہوئی ہے یا امیر بالاج قتل کیس کی بھی صلح ہوگی ہے؟ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم لوگ نے ہر طرح کی صفائی جو ہے تیفی بٹ صاحب وغیرہ کو دی ہے کہ اس قتل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سہیل شوکت بٹ صاحب جو ہیں وہ انہیں 2 دفعہ دبئی گئے ہیں، امیر موصب سے ملے ہیں، امیر موصب صاحب نے صلح کی حامی نہیں بھری۔ اس کے بعد اسرار بٹ صاحب گئے ہیں، پھر ہم نے کیسر بٹ کو بھیجا ہے کیونکہ کیسر بٹ ان کے سب سے زیادہ کلوز تھا، تو کیسر بٹ کے کہنے پہ بھی انہوں نے جب صلح کی حامی نہیں بھری۔ اس ساری صلح کا پریشر کوئی حکومتی وزیر، کوئی سیاستدان ملوث تھے؟ یہ پریشر تھا جس کی وجہ سے صلح ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، امیر بالاج کے قتل کے بعد 3 بڑی دشمنیاں لاہور شہر میں جو ہے وہ برپا ہو گئی۔ تیفی بٹ گروپ، ٹیپو ٹرکا والا گروپ اور کیسر بٹ گروپ کے درمیان جو ہے یہ دشمنی برپا ہوئی، لیکن اس کے بعد جیسے ہی تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کا قتل ہوتا ہے، اس دشمنی کی آگ میں مزید جو ہے وہ تیل چھڑکنے کا کام کیا اس قتل کے بعد جو ہے۔ لیکن ابھی کی اپڈیٹ یہ ہے کہ کیسر بٹ کی جانب سے جو ہے امیر بالاج کے خاندان کے ساتھ لا تعلقی کرنے کے بعد تیفی بٹ گروپ کے ساتھ صلح کر لیا ہے۔ اس ساری صلح کے درمیان جو ہے سینئر کرائم رپورٹر نعمان شیخ صاحب موجود تھے، ان سے بات کرتے ہیں صلح کیسے ہوئی، کون کون لوگ وہاں پر موجود تھے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ نعمان بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ واقعی صلح ہو گئی؟ ابھی بھی لوگ اسی کشمکش میں تھے جو 4-5 دن سے چہم گوئیاں ہو رہی تھی؟ دیکھیے ذہن، میں اس وقت وہاں پہ موجود تھا، یہ اب سے تھوڑی دیر پہلے کا ہی واقعہ ہے۔ جو تیفی بٹ صاحب کا گھر ہے مال ٹاؤن میں، وہاں پر ان کے جو کہہ لیں کہ جو بہنوئی قتل ہوئے تھے، ان کے دونوں بیٹے حمزہ، حیدر، ان کے تایا، اس کے علاوہ ان کی فیملی کے اور لوگ جو ہیں یہ وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھے۔ اور تقریباً 2 گھنٹے جو ہے اس کے بعد کیسر بٹ، اسرار بٹ صاحب، بگا بٹ صاحب جو شفقت بگا بٹ صاحب ہے جو ان کے سارے چیئرمین ہیں، اس کے علاوہ ملک صاحب تھے، ایک باجی بٹ تھے، انجم بٹ صاحب تھے، پھر اس کے علاوہ اور کافی جو لوگ تھے جن کا تعلق لکھو ڈیر سے ہے اور بسین گاؤں وغیرہ سے ہے اسی سائڈ کے، کیونکہ ان ساروں کے سربراہ جو ہیں وہ شفقت بگا بٹ صاحب ہیں اور ان کا تیفی بٹ صاحب کے ساتھ ایک پرانا تعلق ہے، کوئی 30 سے 35 سال پرانا۔ شفقت بگا بٹ صاحب کی قیادت میں وہ تمام لوگ آئے، تقریباً 35 سے 40 کے قریب تھے، آ کے سب بیٹھے۔ سب سے پہلے جو ہے قرآن پاک سے تلاوت کا آغاز کیا گیا۔ تلاوت کے بعد جو ہے وہ اجتماعی طور پر جاوید بٹ مرحوم صاحب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی، اور اس کے بعد جو اعلان کیا گیا سب سے پہلے حمزہ نے کیا کہ جو باتیں ہوئی تھیں، ہم نے جو ہمارے بڑوں نے جس طرح کہا ہم نے اس کو منوان قبول کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو اور یہی امن آگے چلے۔ اس کے بعد کیسر بٹ صاحب نے بات کی، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم لوگ نے ہر طرح کی صفائی جو ہے وہ تیفی بٹ صاحب وغیرہ کو دی ہے کہ اس قتل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہم جو یہ کیسر بٹ نے صفائیاں دی؟ کیسر بٹ صاحب نے انہوں نے کہا کہ ہمارا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے ان کو تمام تر اپنی جو کہہ لیں کہ ایک صفائی دی ہے کہ اس کی پلاننگ میں بھی ہمارا کوئی حصہ نہیں تھا۔ لوگ ابھی بھی یہ یہاں پر نعمان بھائی لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ صرف کیسر بٹ کی صلح ہوئی ہے یا امیر بالاج قتل کیس کی بھی صلح ہوگی ہے؟ نہیں، یہ صرف کیسر بٹ کی صلح ہوئی ہے اور یہ کیسر بٹ کی فیملی تک ہی ہے، کیونکہ اس کے بعد فوری طور پر جب شفقت بگا بٹ صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس پوری صلح یہ تینوں خاندانوں میں صلح ہو جائے، جس میں انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ سہیل شوکت بٹ صاحب جو ہیں وہ انہیں 2 دفعہ دبئی گئے ہیں، امیر موصب سے ملے ہیں، امیر موصب صاحب نے صلح کی حامی نہیں بھری۔ اس کے بعد اسرار بٹ صاحب گئے ہیں، پھر ہم نے کیسر بٹ کو بھیجا ہے کیونکہ کیسر بٹ ان کے سب سے زیادہ کلوز تھا، تو کیسر بٹ کے کہنے پہ بھی انہوں نے جب صلح کی حامی نہیں بھری تو ہم نے مکمل طور پر آپس میں میٹنگ کر کے ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ آج کے بعد ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن ہم نے انہیں یہ ضرور ساتھ کہا ہے کہ اگر کل کو تم لوگ صلح کرنا چاہو تو ہم اپنا کردار ضرور ادا کریں گے، لیکن جو تیفی بٹ صاحب ہیں ان سے ہمارا کوئی 30 سے 35 سال پرانا تعلق ہے، تو ان سے ہماری جو ہے وہ اب صلح ہو گئی ہے، اب ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہے۔ اور جو ہماری ٹیپو ٹرکاں والا گروپ سے بھی 3-4 سال پہلے صلح ہوئی تھی، تو اس کے بعد اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ کیسر بٹ نے کہا؟ یہ شفقت بگا بٹ صاحب نے کہا، جو ان کے اپنے بڑے تھے، اور کیسر بٹ نے اس کی تائید کی، انہوں نے بھی یہی الفاظ دہرائے۔ کیا نعمان بھائی اس ساری صلح کا پریشر کوئی حکومتی وزیر، کوئی سیاستدان ملوث تھے؟ یہ پریشر تھا جس کی وجہ سے صلح ہوئی؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی پریشر تھا، کیونکہ پریشر لگ نہیں رہا تھا۔ جو ان کی باڈی لینگویج تھی سب کی، اس میں ایک
कैसर भट्ट साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो इस वक्त चल रहा है, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इस दुश्मनी को अब अफोर्ड नहीं कर सकती। हम लोगों ने बहुत सा वक्त जो है वो दुश्मनियों में ज़ाया कर दिया, लेकिन हम अब ये नहीं चाहते कि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो इस दुश्मनी में पड़े। तो ये बड़ी उनकी लॉजिकल बात थी, और मेरे ख्याल से जो तीफ़ी भट्ट साहब हैं उन्होंने भी बड़े खुले दिल का मुजाहरा किया। भट्ट साहब मौजूद थे? तीफ़ी भट्ट साहब मौजूद नहीं थे, लेकिन जब ये सारी सुलह हो गई, सुलह की तकरीब एक ख़त्म हुई, उसके बाद एक खाना हुआ, खाने के बाद एक कमरे में तमाम लोग इकट्ठे हुए, वहाँ पे बाकायदा वीडियो कॉल पर तीफ़ी भट्ट साहब की फर्दन पहले शफ़क़त बग्गा भट्ट साहब से बात हुई, उसके बाद उनकी इसरार भट्ट साहब से हुई, फिर कैसर भट्ट साहब से, फिर मलक साकिब साहब से, फिर अंजुम भट्ट साहब से, सबसे बात हुई, साबी भट्ट साहब से भी सबसे बात हुई। ये वीडियो कॉल पर? ये वीडियो कॉल पर हुई, और उसमें बाकायदा जिस तरह भट्ट साहब अपना एक टिपिकल पंजाबी में वर्ड बोलते हैं कि मेरे वालों तुहानू ठंडियां हवावां ही आनगियां ते असी एक खानदान है तो असी खानदान बन के रहना। पहले ततियां मामा सी? पहले ततियां देखे, जिस वक्त अमीर बलाज का मर्डर हुआ तो उसके बाद एक ऐसी वेव चली कि उसमें हर सोशल मीडिया वाले ने उठकर आग ही भड़काई। उसके बाद बिल्कुल नेगेटिविटी थी, नहीं करना चाहिए था, सुलह का किरदार अदा करना चाहिए। सुलह का किरदार उस वक्त शुरू हुआ जब जावेद भट्ट साहब का कत्ल हुआ, तो उसके बाद लोगों ने जस्टिस फॉर जावेद भट्ट साहब शुरू कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया आग भड़काने का ही काम करता रहा। और शफ़क़त बग्गा भट्ट साहब ने मेरे से बड़ी एक अच्छी बात की कि हम लोग अभी भी यही चाहते थे कि सुलह हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे अनासर हैं जो कि ये सुलह नहीं चाहते, और वो दोनों ख़ानदानों में से हैं, सबसे अभी भी। तो मेरा ख्याल है कि अब दोनों को एहसास हो गया, जिस तरह के कैसर भट्ट ने कहा कि हम अपनी आने वाली नस्लों को इसमें नहीं झोंकना चाहते, तीफ़ी भट्ट साहब को भी एहसास हो गया कि अब आगे उनकी औलाद जो है वो शायद ये अफोर्ड नहीं कर सकती। तो तीफ़ी, आपके जो सोर्सेज हैं, क्या आपके सोर्सेज के मुताबिक तीफ़ी भट्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं या नहीं है? वो बैरून मुल्क मौजूद हैं। कब आएंगे ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कोई बात नहीं हुई मुलाकात में? 4 से 5 दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था जो आफ्ताब फुल्लरवान साहब हैं, SSP OCU, अमीर बलाज कत्ल केस के हवाले से जो आफ्ताब के वो तीसरा मुलजिम बिलावल पकड़ा गया, उसमें मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था तीफ़ी भट्ट साहब बैरून मुल्क मौजूद हैं, और ऐसे मुल्क में जिसके साथ हमारा MOU नहीं है मुलजिम लाने का। लेकिन ये पता है कि किस मुल्क में किस जगह पर मौजूद? हाँ, ये उन्हें पता है पुलिस को, लेकिन अब वो कब वापस आते हैं, क्योंकि देखें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो मुकदमा है अमीर बलाज वाला, जिसमें तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट इश्तिहारी हैं, इसमें कातिल पहले ही मकतूल हो चुका हुआ है, दोनों मारे जा चुके हैं। कातिल भी मर गया और जो मकतूल वो तो ऑलरेडी कातिल ने मकतूल था। तो उसमें तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट जो है 109 में है, मशवरे में। लेकिन 109 में तो एहसन भी था जिसको कत्ल कर दिया गया, या पुलिस मुकाबला हो गया, ये क्या? एहसन तो पकड़ा गया, उसके बाद जो पुलिस की स्टोरी बनी वो मारा गया। वो भी 109 में था? वो 109 में था। अब अगर तीफ़ी भट्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इतने ज़्यादा जो उनकी दुश्मनदारी का एक ग्राफ बना हुआ है, इतने लोगों को लेकर सारी मोबिलाइजेशन, अदालत तक जाना, पुलिस अफसरों के पास पेश होना, तो मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान अभी तो नहीं आएंगे, अभी नहीं, जब तक इस केस का कोई मंतकी अंजाम नहीं होता, कोई इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान सुलह नहीं होती, या फिर कोई सज़ा अनाउंस नहीं हो जाती। अक्सर औकात नुमान भाई हमने देखा है कि जब सुलह हो जाती है मुख्तलिफ ख़ानदानों की, और उसके बाद एक नई कत्लो गारत का सिलसिला भी शुरू होता है, आपने भी बेशुमार चीज़ें कवर की, आपको भी इस तरह का कोई चीज़ लगती है क्या इस तरह की मुमकिन है? देखिए, एक तो आज बड़ी मुबारक रात है शब रात की, तो इस पे सुलह की जो एक कोशिश हुई है अब वो अच्छी है। अब ये कहाँ तक कामयाब रहती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी दोनों ख़ानदान इस चीज़ पर पुरुमीद नज़र आए हैं कि वो अब इस कत्लो गारत के सिलसिले को ख़त्म करते हुए एक नया दोस्ती का बाब जो है उसको शुरू करें। तो अब ये सुलह कब तक चलती है इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी दोनों की जो बातें हैं वो सुनकर ये लगता है कि ये सुलह अब कुछ देर चलेगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इसरार भट्ट और कैसर भट्ट की जो पहले सुलह हुई हैं वो मिसाली साबित हुई हैं और वो आज तक चल रही हैं। लेकिन ये बताइएगा कि मुकदमात अभी वहीं के वहीं हैं, यानी कि अमीर बलाज कत्ल केस भी वहीं का वहीं है मुकदमा, जिसमें इश्तिहारी मुलजिम जो हैं वो तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट हैं, और जावेद भट्ट के कत्ल की अगर बात करें तो उसमें जो इश्तिहारी मुलजिम है अमीर मौसब, मुकदमा अभी वहीं का वहीं है। सुलह का क्या समझते हैं कि मुकदमात पर कितना असरअंदाज होना ज़रूरी था?
देखिए इन दोनों केसेस की अगर बात की जाए ना, अगर अमीर बलाज वाला कत्ल था तो उसमें 2 मुलजिम पहले पकड़े गए थे, उसके बाद बिलावल तीसरा पकड़ा गया। अब सिर्फ 2 मुलजिम बचे हैं, जिसमें से एक गोगी भट्ट है और एक तीफी भट्ट, दोनों इश्तिहारी हैं। तीफी भट्ट के बारे में पुलिस ये कहती है वो जिस मुल्क में है, हमने रेड वारंट की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी हम उनको ला नहीं सकते। जो दूसरी जानिब गोगी भट्ट है, उस पे पुलिस को ये है कि वो अमीर बलाज के कत्ल में किसी तरह भी मुलव्वस नहीं है। वो सिर्फ पेश नहीं हो रहा, पेश होके वो बयान दे अपना, बयान देने के बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश की हुई है तो वो 90% चांस है कि वो बरी हो जाएगा, लेकिन वो पेश गोगी भट्ट तीफी भट्ट नहीं। भट्ट नहीं। और जो जवेद भट्ट का कत्ल है उसमें 2 शूटर्स पकड़े गए। उसके अलावा एक जो मेन मुलजिम है आरिफ भट्टी, वो अभी मफरूर है, क्योंकि आरिफ भट्टी ने ही कहा गया था, जो स्टोरी सामने आई थी इन्वेस्टिगेशन, कि आरिफ भट्टी शूटर्स को मौसब के पास लेके गया था। उसमें मेन कैरेक्टर आरिफ, मेन कैरेक्टर, उसमें कैसर भट्ट की हद तक जो है वो अब उस केस में से इनकी जो सुलह हुई है, इस सुलह पे मेरी हमज़ा से जो बात थी, हमज़ा ये कहना था कि हमने पुलिस को ये बयान दे दिए हैं कि ये हमारे मुलजिम नहीं है, तो कैसर भट्ट की तो ज़मानत हो जाएगी। अब अमीर मौसब और अमीर फ़तेह और आरिफ, उसमें 3 करैक्टर बाकी हैं। मेरे ख्याल से अमीर फ़तेह और अमीर मौसब या तो इश्तिहारी हो चुके हुए हैं या हो जाएंगे। आरिफ को पहले ही पुलिस तलाश कर रही है, तो वो भी क्योंकि बैरून मुल्क हैं। अब पुलिस देखेंगे, अब ये सारा काम पुलिस का है कि पुलिस कब इन दोनों केसेस के मुलजमान को गिरफ़्तार करती है। अगर नहीं करती तो उससे पहले इन दोनों के दरमियान अगर कोई सुलह हो जाए तो फिर सिनेरियो कोई और। अहम गोइयाँ थी कि पुलिस के आला अफसरान भी इनकी सुलह करवाने में मुलव्विस थे, काम सुलह हो जाए, जो कि आज बाबरकत रात के मौके पर जो है सुलह हुई। तो आज सुलह के मौके पर कोई पुलिस ऑफिसर भी मौजूद था? नहीं, कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था। कोई सियासी मियाँ साकिब साहब थे जो कि DSP थे, वो मौजूद थे, लेकिन वो मुख्तलिफ इस तरह की जो सोशल गैदरिंग्स होती हैं, ख़ास तौर पर सुलह वहाँ पे जाते हैं। इसके अलावा सियासी समाजी शख्सियत हाफिज़ खालिद थे, वो थे, उनका भी काफ़ी रोल है इस सुलह में। लेकिन जो मेन किरदार है वो मेरे ख्याल से इस सुलह में एक तो शफकत बग्गा भट्ट की फैमिली का है, दूसरा तीफी भट्ट साहब खुद हैं, या फिर ताजर बरादरी है इस शहर की, क्योंकि वहाँ पर ताजर बरादरी की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीबन तमाम मार्केटों के सदूर मौजूद थे, कारोबारी शख्सियात मौजूद थी, और ये सुलह करवाने में भी उनका बहुत अहम किरदार है। ख्वाजा अजहर गुलशन भी मौजूद? नहीं, वो नहीं थे। ये क्या कहानी है कि ख्वाजा अजहर गुलशन तीफी भट्ट के बड़े भाई वो उस बड़ी सुलह में मौजूद ही नहीं? ये अब उनके फैमिली मैटर्स हैं कि वो एक दूसरे से मिलते हैं, नहीं मिलते, किस तरह कम मिलते हैं। लेकिन जो तीफी भट्ट साहब के बिहाफ पे देखा गया, वो मेरे ख्याल से जो दीगर ताजर बरादरी थी वो सारी उन्हीं के बिहाफ पे आई हुई थी। सही। तो हमज़ा भट्ट साहब से भी आपकी बात हुई, आपने बताया हमज़ा भट्ट क्या चाहते हैं कि उनके अब वालिद के जो कत्ल का मुकदमा है क्या वो ख़त्म हो जाएगा, या उसके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई चल रही है वो चलती रहेगी? देखिए, हमज़ा और हैदर दोनों बहुत मासूम से लड़के हैं, वो कारोबारी हैं। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहते हैं कि ये दुश्मनी आगे चले। लेकिन अब क्योंकि उनके वालिद साहब का मर्डर हुआ है और जो मेन एक्यूज़ हैं अमीर मौसब और अमीर फ़तेह, उनकी गिरफ़्तारी भी नहीं हुई। वो भी तो 109 में ही आएंगे। अब वो 109 में आएंगे, लेकिन वो जब तक, जिस तरह दूसरी पार्टी जो है वो जब तक तीफी भट्ट को इस केस में मुलव्वस रखेंगे, तो मेरा ख्याल है ये लोग भी अब उनके बिहाफ पे इस केस में इनको मुलव्वस रखेंगे। तो ये तो एक दुश्मनी जो है ये अब कानूनी तौर पर तो चलेगी, कानूनी तौर पर चलेगी, लेकिन इसमें भी जो है अगर अहम किरदार अदा किया जाए जो कि सियासी फैमिलीज़ हैं, सियासी लोग हैं, या फिर पुलिस के आला अफसरान हैं, वो इन 2 ख़ानदानों की भी, यानी कि टोटल 3 ग्रुप्स की सुलह हो सकती है, और कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बेशुमार चीज़ें गर्दिश करती हैं कि सुलह नहीं होनी चाहिए, बदला लेना चाहिए, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन जिस तरह कैसर भट्ट की तीफी भट्ट के साथ सुलह होगी, इसी तरह अमीर मौसब की और तीफी भट्ट ग्रुप की भी अगर सुलह होती है तो यकीनी बात है कि ये शहर लाहौर के अमन के लिए जो है वो बड़ी खुश आइन बात है। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।